Before any pilot flies for the first time, there is always one person who checks them whether they are ready or not. So today I am going to tell you honestly what I check in my cadets while releasing them first solo. Hi, my name is Jinal Patel and I am a commercial pilot and a flight instructor. जब जब मैं कैडेट्स को सोलो रिलीज़ करती हूँ तब मैं अपने आप से एक ही क्वेश्चन पूछती हूँ कि आर दे रेडी और नॉट. मैं स्टूडेंट से भी यही पूछती हूँ, आर यू कॉन्फिडेंट और नॉट? Will you be able to land the plane alone or not? Because up in the sky, no instructor is sitting beside you and you will be flying alone for the very first time. So ये मोमेंट होता है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है. सो ये जो स्टेज है वो इंस्ट्रक्टर्स के लिए भी इतना ही डिफ़िकल्ट टाइम होता है जब हम कैडेट्स को रिलीज़ करते हैं. हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं एंड बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि ओके ये कर लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए. आई ऑलवेज़ प्रे कि चलो सब सही से हो जाना चाहिए. सो क्या क्या चेक्स मैं करती हूँ और क्या क्या चीज़ें मैं चेक करती हूँ एक कैडेट में, वो मैं मेंशन करने जा रही हूँ. सो ये प्रीवियस वीडियो का ही एक पार्ट है. वो मैं उस दिन वो काफ़ी लंबा हो जाता है सो मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. एंड आई विल कीप ऑन अपडेटिंग क्या क्या प्रिपरेशन होती है पूरा जो एंटायर आपका पायलट करियर है उसमें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. In this video, I am going to mention few points that you don't know already because बाहर से लोगों को लगता है good landing is required to go first solo. It's not like that. We check many things in one cadet to release them solo. So if you are a student pilot or dreaming about becoming one, then this video is for you because I share real challenges and experiences. So what I look in my cadets when I send them first solo. सो ये जो फर्स्ट सोलो की फीलिंग है वो जितनी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल है उतनी इंस्ट्रक्टर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है. जब मैं किसी को ज़ीरो से सिखा रही हूँ एंड वो कैडेट जब फर्स्ट टाइम सोलो जाता है अपने आप टेक ऑफ करके एंड अपने आप लैंड करता है सेफली, तो दैट फीलिंग इज़ अमेजिंग. मुझे ऐसा लगता है जितनी बार मेरे कैडेट सोलो फ्लाई करते हैं मुझे भी ऐसा लगता है कि आई एम ऑल्सो फ्लाइंग सोलो. सो ये जो फीलिंग है उसमें हम लोग फीलिंग अपार्ट हम चेक क्या करते हैं प्रैक्टिकली कि एक कैडेट, चलो लेट्स सपोज आई एम गोइंग फॉर द सोलो चेक एंड आई एम चेकिंग द स्टूडेंट either he or she is able to fly solo or not. So what I check is first of all confidence, but confidence only is not a key. So first I check their confidence, their pre-flight procedure, their startup procedures, their engine handling, how they are operating engine and controls, then their taxi, then their lineup and call outs, then their takeoff should be stable and safe, then their maneuvers, all maneuvers should be smooth, not abrupt handling, and then base, pitch and power management, flaps operation, and then traffic information and monitoring, then their radio calls, how they are communicating. Then finals पे I check their stabilize approach criteria, either they are giving or not. Then I check their short finals, if it is stable or not. If it is not, then they are initiating go round or not. That is called decision making skill. Then I check their flare height, is it low, high or correct. Then I check their landing, back pressure thing, and then after landing also it's not finished yet. So I check their centerline, maintenance, braking actions and stopping the airplane, and then how they are turning the plane on the ground, over the runway, and how they are coming and switching off the engine. So this is the full procedure when I check someone to go solo. सो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसीजर जब मैं स्टूडेंट्स को चेक करती हूँ कि ये फर्स्ट सोलो जाने के लिए कैपेबल है कि नहीं. इफ़ दे आर डूइंग दिस एवरीथिंग करेक्टली देन आई रिलीज देम फर्स्ट सोलो. एंड फर्स्ट सोलो जो होता है वो इंस्ट्रक्टर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मिक्स फीलिंग्स होता है. हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा प्राउड होते हैं एंड बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं कि हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं, सेफली हो जाना चाहिए. एंड वी आर ऑल्सो प्रेइंग कि अच्छे से हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए. सो या आई वुड से ये जो ट्रेनिंग फेज है इनिशियल वाला, जो इनिशियल आपके 20, 30, 40 आवर्स जो है, दे आर वेरी स्पेशल इन योर एविएशन करियर. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको सीखने में टाइम लग जाता है. सो इट्स ओके. ऐसा नहीं है कि सबको 10 आवर्स, 12 आवर्स, 15 आवर्स में सोलो मिल जाता है. एंड अगर आप पूरा एविएशन जर्नी देखोगे लॉन्ग टर्म का, 40, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स का आपका, तो उसमें आप 20, 30 आवर्स तो दे ही सकते हो आपका इनिशियल ट्रेनिंग सीखने के लिए. सो
अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे जल्दी सोलो जाना है, तो इट्स नॉट लाइक दैट। आप जितना इंस्ट्रक्टर्स के साथ फ्लाई करोगे आप उतना टेक्निक ज़्यादा सीखोगे, एंड आप जितने डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स के साथ फ्लाई करोगे उतने डिफरेंट टेक्निक्स आप ज़्यादा सीख पाओगे, एंड देन यू कैन मेक योर ओन टेक्निक टू फ्लाई द प्लेन. And pilot training is very exciting, and it takes a lot of discipline, decision making skill and your patience. So let me know आपके क्या क्या डाउट्स है रिगार्डिंग फर्स्ट सोलो. मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं टॉपिक्स. फर्स्ट सोलो सारे पायलट्स की लाइफ में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है, एंड आई ट्रूली अंडरस्टैंड दैट. एंड मेरा फर्स्ट सोलो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल था. I still remember my first solo when my instructor stepped out of the cockpit and told me bring her back safely. So ये जो मोमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है. स्टिल रिमेंबर दोज वर्ड्स एंड मोमेंट्स. एंड मैं कॉकपिट में बहुत ज़्यादा शाउट करके कॉल आउट्स दे रही थी अपने, जो कॉल आउट्स होते हैं फ्लाइंग के वो सब. एंड आफ्टर माई लैंडिंग आई टोल्ड माई सेल्फ कि येस वी मेड इट. तो ये जो होता है, ये जो फीलिंग है दैट इज़ वेरी स्पेशल. आप ऑफ कोर्स आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा या फिर एक्सपीरियंस करोगे इन फ्यूचर. सो बी रेडी फॉर इट. If you genuinely want some guidance and to know about real-time experiences, then you are on the correct channel. Stay tuned. Please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Bye bye.